आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल. टाइप इन चैट बॉक्स हाउ आर यू. कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल, विजिबल, प्रॉपरली, क्लियरली? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से? टाइप इन चैट बॉक्स. रे बाबा कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू? अल्लाह नारो केम छो. हाउ आर यू my friends? I welcome all of you to your own YouTube channel Unacademy Gate ME PIXE. और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स IIT JEE मेन एंड एडवांस क्वेश्चन. बेटा आज का ये सेशन आपकी लाइफ चेंज कर देगा. टुडे सेशन इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ. आपको मजा आने वाला है रे बाबा. आज जाओ रे बाबा. So those who are coming first time for my class, let me introduce myself. My name is Devendra Singh Negi. I'm mechanical head Unacademy brands. Get All India Rank 1 2019 20 census paper. All India Rank 1 banknote paper mill. I completed my master from IIT Bombay. I was the topper of my batch and I'm teaching for GATE and ASC since 9+ years. Till now I have mentored more than 50,000 students in online, offline and seminar mode. Good evening, good evening, good evening. Aaj jao re baba. Ho ho ho. My friends, I'm top mechanical educator on Unacademy Plus, जिसका मतलब है कि Unacademy Plus पर मेरे लाइव कोर्सेज आते रहेंगे. No one can stop. The moment you are using Negi 10 for joining Unacademy Plus, you'll be getting double dhamaka, you'll be getting double benefit, you'll be getting my personal guidance of GATE All India Rank 1 2019 20 census paper. At the same time, you'll be able to watch my live courses on Unacademy Plus. In fact, I was the first rank 1 mechanical educator on Unacademy Plus and I am having the record of highest knowledge hats dedications on Unacademy Plus. बेटा ये recently बैच स्टार्ट हुआ था Evolve for GATE 2022 बैच L, Ascend for GATE 2023 बैच L 2 जून को स्टार्ट हुआ था. जिनको ज्वाइन करना है Unacademy Plus, they can join using the referral code Negi10 Negi10 Negi10. आ जाओ रे बाबा. What a beauty. Yes. But we are conducting Unacademy Combat this upcoming Sunday on 6th of June morning 11 AM and you can join using the invite code Negi10 लगाओ रे बाबा. आ जाओ रे बाबा. You'll be getting the scholarship, right? Now, अगर आपने अभी तक Unacademy Learning App इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए, because the moment you are installing the Unacademy Learning App, you will be able to unlock your free plans. आप अपने free plans को unlock कर लेंगे. Unacademy free special classes, Unacademy quizzes, Unacademy test series, Unacademy combat, सबके सब unlock हो जाएंगे बाबा. App will be asking you an invite code and there is only one invite code for Negi soldiers. What is that? क्या है रे बाबा? There is only one invite code Negi10. आ जाओ रे बाबा. Now सेकेंड एडवांटेज इज यू कैन सेंड मी द मैसेज डायरेक्टली. बेटा आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं. जैसे आपके पास Unacademy लर्निंग ऐप है, आप मुझे मैसेज सेंड कर दीजिए. आपका कोई भी डाउट है, योर एनी डाउट रिगार्डिंग प्रिपरेशन स्टडी या कुछ भी किसी भी तरीके का डाउट है, मुझे फील फ्री करके मैसेज कर दो Unacademy लर्निंग ऐप पर. बेटा आपको क्लास की पीडीएफ यहां मिल जाएंगी. इफ यू आर लुकिंग फॉर द पीडीएफ ऑफ द क्लास, Negi10 इज द टेलीग्राम चैनल. ऑलरेडी मोर देन 9,000 Negi soldiers has joined this Telegram channel. One more thing, my friends, I'm taking the free classes on YouTube as well as on Unacademy platform, Unacademy free special classes. आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए ताकि आपको जब भी मैं स्पेशल क्लास लूं, फ्री स्पेशल क्लास लूं, आपको नोटिफिकेशन आ जाए. So do one thing, go to your Unacademy learning app, search Devendra Singh Negi and start following me so that you'll be getting the notification. One more thing, today again we are going to meet at, अरे आज तो झमाझम फ्राइडे है रे बाबा. Today we are going to meet at 5:50 PM. 5:50 पे मिलने वाले हैं और आपको बहुत मजा आने वाला है रे बाबा. ओहो, आर यू रेडी? बोलो रे बाबा, आप लोग रेडी हैं? We are going to start the session. फटाफट से बोलेंगे रे बाबा. Enter the invite code to unlock your PPT. What is the invite code रे बाबा? What is the invite code to unlock the PPT? Come on everyone. Type in chat box. What is the invite code to unlock the PPT? Negi10. ये हुई ना बात. Come on everyone. बेटा आज का सेशन आपकी लाइफ चेंज कर देगा. आज का सेशन आपका सोचने का नजरिया चेंज कर देगा. आज का सेशन आपकी लाइफ में
कॉन्फिडेंस भर देगा कि हम भी आईआईटी में जा सकते हैं। इस सेशन का यही मकसद है, इस सेशन का यही मकसद है। ये पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जानी चाहिए, ये पॉजिटिव सोच डेवलप हो जानी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाना चाहिए कि हम कुछ भी। मार्क योर अटेंडेंस रे बाबा, कम ऑन एवरीवन, मार्क योर अटेंडेंस। आई वांट ईच एंड एवरीवन टू मार्क द अटेंडेंस। फटाफट से मार्क कर देंगे रे बाबा। कम ऑन एवरीवन, मार्क योर अटेंडेंस क्विकली। टाइप इन चैट बॉक्स। डर मिटा देंगे रे बाबा, आज तो डर मिट जाएगा रे बाबा। फटाफट से मार्क योर अटेंडेंस। कैसे अटेंडेंस मार्क करनी है? हाउ टू मार्क द अटेंडेंस? हाँ, विशी इज प्रेजेंट, अजय इज प्रेजेंट, ग्रीष्मा इज प्रेजेंट, दीपक इज प्रेजेंट, साइतु इज प्रेजेंट, विक्रमजीत इज प्रेजेंट, अनंत इज प्रेजेंट। अरे हिट द लाइक बटन रे बाबा, यस, वेरी गुड। पल्लवी इज प्रेजेंट, यस, वेरी गुड। अनंत भी प्रेजेंट है रे बाबा, बहुत बढ़िया। सो आर यू रेडी हैं? Shall we start the session? Shall we start discussing the problems? पहले बेटा बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस बच्चा प्रॉब्लम, चंपू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं रे बाबा फर्स्ट। चलो 30 सेकंड्स रे बाबा, 30 सेकंड्स। क्या है क्वेश्चन? IIT JEE मेन 2021। ये तो मेन 2021 का क्वेश्चन है रे बाबा, ये तो 2021 का क्वेश्चन है रे बाबा। इन थर्मोडायनामिक्स हीट एंड वर्क आर, ऑप्शन ए पाथ फंक्शन, ऑप्शन बी इंटेंसिव थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स, ऑप्शन डी पॉइंट फंक्शन। फटाफट से मचा देंगे रे बाबा। चलो 30 सेकंड टाइमर लगाकर सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड। कम ऑन एवरीवन, स्टार्ट गिविंग द आंसर। रे बाबा, फटाफट से आंसर करते जाएंगे रे बाबा। कम ऑन। यस। अरे ये तो खत्म। क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो गया रे बाबा। ये था मेन 2021 का क्वेश्चन, खत्म है। पाथ फंक्शन, हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शन बेटा। हीट एंड वर्क आर व्हाट? पाथ फंक्शंस, है ना? करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रे बाबा? फॉर एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स प्रेशर इज इक्वल टू, where gamma is the ratio of specific heats. But a fractional change in its pressure. What is the meaning of fractional change in its pressure? He is asking fractional change in its pressure. He is asking dP by P. फटाफट से बता देंगे रे पापा. What is dP by P? Come on everyone. What will be dP by P? फटाफट से बोल दो रे पापा. 30 सेकंड रखता हूं. I will be giving you 30 seconds. फटाफट से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को. What is the answer? Come on everyone. इसका क्या आंसर है? अरे ये तो बहुत इजी है रे बाबा. आई हैव टोल्ड यू ना, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. व्हाट इज दैट? व्हाट इज द स्लोप ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस अंडरगॉन बाय अ परफेक्ट गैस ऑन पीवी डायग्राम. याद आ रहा है आपको? ये तो पूछा है. आर यू एबल टू रिकलेक्ट? dP by dV is equal to what? Minus gamma P by V na. So he is asking what? Fractional change in pressure dP by P. So this will be equal to what? Minus gamma dV by V ना रे बाबा. ये तो डायरेक्ट नोट से है. कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा? Which option is matching? Tell me the answer. Which option is matching? बोलो रे बाबा. Which option is matching रे बाबा? Which option is matching रे बाबा? बेटा आज तो बेहतरीन. ये 2021 का क्वेश्चन है मेन 2020. अब एडवांस के भी करवाने वाला हूं. आज मजा आने वाला है बेटा. आपका ना कॉन्फिडेंस इस लेवल पे पहुंच जाएगा. 20 एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मजा आने वाला है. चलो नेक्स्ट. आ रहा है, ये तो बहुत ही चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है जी? क्या बोलता है? जेईई मेन 2021. द पीवी डायग्राम ऑफ अ डायटोमिक आइडियल गैस सिस्टम गोइंग अंडर साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर. ओके, ये पीवी डायग्राम दिया है किसी साइक्लिक प्रोसेस का, ए बी सी डी ए. ओके, द वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस सी डी इज. कहां है सीडी? अच्छा ये है सीडी. रे बाबा. इसमें
कितना वर्क डन हो रहा है वो पूछा गया। पहले तो मुझे ये बता दो, वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? सीडी में ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस सीडी वर्क डन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फटाफट से बोल देंगे रे बाबा, ड्यूरिंग द प्रोसेस सीडी वर्क डन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, अरे बोलो रे बाबा, ड्यूरिंग द प्रोसेस सीडी, ड्यूरिंग द प्रोसेस सीडी व्हाट विल बी द वर्क डन, पॉजिटिव और नेगेटिव? अरे चंपो, व्हाट इज हैपनिंग टू द वॉल्यूम रे बाबा? वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. If a volume is decreasing 100%, displacement work will be negative. So, if displacement work is negative, Champa, C cannot be the answer, D cannot be the answer. फटाफट से बताओ क्या रहा है आंसर? What is the answer? What is the answer? अरे बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा. P1 is given, V1 is given, P2 is given, V2 is given, gamma is given. अरे ये तो कोई अंधा भी बता देगा. Displacement work for the process CD will be what? PCVC minus PDVD upon what? अरे 1 2 की जगह CD दिया है ना रे बाबा, तो उतना लिख लो ना रे बाबा. So WD for the process CD is equal to what? PCVC. PCVC is what? Oh ho ho, 100 Newton per meter square multiply by what? 4 minus what? Minus what? PDVD. जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. 200 into what? 3 डिवाइडेड बाय गामा कितना है रे बाबा? 1.4 माइनस 1. अरे अब तो बता दे रे बाबा चंपू, व्हाट इज द आंसर रे बाबा? ये था मेन का क्वेश्चन, 2021 मेन का क्वेश्चन. आ गया आंसर, -500 जूल. आई होप ईच एंड एवरीवन इज गेटिंग द आंसर. बोलो रे बाबा, आर यू गेटिंग द आंसर? आर यू आंसर इज ए आगरा. बेहतरीन वाले क्वेश्चन करवाने वाला हूं, कॉन्सेप्चुअल. अभी ये थोड़ा सा वार्म अप हो जाओ, 10-15 मिनट वार्म अप हो जाओ, 4-5 क्वेश्चन कर लो इजी वाले, थोड़ा सा अपना माइंड खोल लो, थोड़ा सा फार्मूला आपके रिकलेक्ट हो जाएंगे और फिर करूंगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके लिए एडवांस वाले. चलो चलो चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन है. दिस इज नाइस क्वेश्चन, दिस इज नाइस क्वेश्चन. द वॉल्यूम कैपिटल V ऑफ एन एनक्लोजर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस. मेरे पास एक एनक्लोजर है, आई एम हैविंग वन एनक्लोजर, आई एम हैविंग वन एनक्लोजर. इन दैट एनक्लोजर आई एम हैविंग द मिक्सचर ऑफ 3 गैसेस, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T. पूछा क्या है भैया? कंसीडर R बार एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. कर लिया रे बाबा कंसीडर. द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज, जो 3 गैसेस का मिक्सचर है उसका प्रेशर पूछा जा रहा है रे बाबा. फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो रे बाबा. कर देंगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे. अरे छंपा, निकालना रे बाबा. ये देखो बेटा, ये है एनक्लोजर, ये है एनक्लोजर. इसमें कौन कौन सी 3 गैस हैं? फटाफट से बताओ, इसमें कौन कौन सी 3 गैस हैं रे बाबा? ऑक्सीजन, आई एम हैविंग ऑक्सीजन. व्हाट एल्स? आई एम हैविंग नाइट्रोजन. व्हाट एल्स? आई एम हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड. ही इज आस्किंग व्हाट इज द प्रेशर ऑफ दिस गैस मिक्सचर. अरे दिस मिक्सचर इज माय सिस्टम रे बाबा. ये जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है, ये मेरा सिस्टम है. PV is equal to NR bar T रे बाबा. PV is equal to NR bar T रे बाबा. अब यहां पे कुछ बच्चे फंस जाएंगे, अब यहां पर कुछ बच्चे फंस जाएंगे जिनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना नहीं आता, वो फंस गए. बेटा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आई एम हैविंग? इफ आई एम हैविंग 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन? 32. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? 16/32. 0.5 मोल्स ना, 0.5 मोल्स ना. देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन आर एट 28, मोलर मास इज 28, 1 मोल, राइट. हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आई एम हैविंग रे बाबा? 44/44. अरे 1 मोल. ये तो 2.5 मोल हो गए टोटल. अब देखो क्या करेंगे. अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, P ऑफ द मिक्सचर, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू number of moles of the mixture R bar T of the mixture, of course T only na. So P of the mixture is equal to what? Number of moles of the mixture R bar T of the mixture divided by volume of the mixture. So pressure of the mixture कितने हैं? number of moles 2.5 बोले तो 5/2 R bar T by V. यही आंसर, यही आंसर. चलो आंसर इज सी चेन्नई. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर. यहां तक सबको समझ में आ गया बेटा? बेहतरीन वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सॉल्व द ब्यूटिफुल क्वेश्चंस. आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब आएगा मजा. इस क्वेश्चन का आंसर दो.
अब यहां से थोड़ा सा और कॉन्सेप्चुअल पे चलता है। अभी तक तो आपको बस फार्मूला बेस करवा दिए, अब थोड़ा और कॉन्सेप्ट में घुसते हैं। ये है आपका मेन 2000 का क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशंस, an ideal gas expands from volume V1 to V2 in 3 different ways. The work done by the gas is W1 if the process is purely isothermal, W2 if purely isobaric, and W3 if purely adiabatic. यहां पे आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, फटाफट से बताओ, 30 सेकेंड्स। चलो यहां बताओ क्या आंसर आएगा। ये तो अच्छा क्वेश्चन है रे बाबा, दिस इज वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। इसका आंसर बताओ रे फटाफट से रे बाबा, जल्दी से आंसर देंगे। आई वॉन्ट ईच एंड एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई वॉन्ट ईच एंड एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन। फटाफट से आंसर करेंगे रे बाबा, जल्दी से। देखो देखो ध्यान से, लेट मी से ऑन दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस आई एम कीपिंग वॉल्यूम, let me say on this vertical axis I'm keeping pressure। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, what he is saying in the question, let us try to understand what he is trying to say in the question, let us try to understand। starting with the same initial condition, same initial state है रे बाबा, same initial state है रे बाबा। चलो ठीक है, same initial state है तो यहां कहीं मान लिया, सेम इनिशियल स्टेट है तो यहां कहीं मान लिया रे बाबा। आज आपको मजा आ जाएगा बेटा, टुडे यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइक एनीथिंग। लेट मी से दिस इज द सेम इनिशियल स्टेट, ओके। 3 डिफरेंट वेज, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो रहा है, ठीक है। सो लेट मी से दिस इज द वॉल्यूम V1 एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम V1 टू V2, है ना। सो लेट मी से दिस इज V2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। The work done by the gas is W1 if the process is isothermal। Isothermal कैसा दिखाई देगा रे बाबा, how the isothermal will look like, something like this, rectangular hyperbola। बहुत बढ़िया, isothermal ना, तो यहां T लिख देता हूं, चलो 1 to T। W2 if purely isobaric, अरे ये isobaric कैसा दिखाई देगा रे बाबा चंपा, आइसोबारिक तो ये है बेटा हॉरिजॉन्टल, यस दिस इज आइसोबारिक एक्सपेंशन। क्या ही तो बात है रे बाबा, आइसोबारिक। चलो पी डाल दिया। एंड W3 प्योरली आइडियाबेटिक, ऑफ कोर्स आइसेंट्रोपिक ही इज ट्राइंग टू से। तो आइसेंट्रोपिक कैसा होगा रे बाबा, स्लोप ज्यादा होने का है ना आइसोथर्मल से, ये हो गया आपका प्योरली आइसेंट्रोपिक एडियाबेटिक। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन रे बाबा, व्हाट इज area under the curve, area under the curve projected on, area under the curve projected on volume axis on PV diagram, area under the curve projected on volume axis will be giving the magnitude of displacement work। यहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्क W1 है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्क W2 है, यहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्क W3 है। यार बता दो जरा कौन सा सबसे ज्यादा है, W2 इज मैक्सिमम, जल्दी से बताओ, है ना, बात सही है। W2 इज मैक्सिमम, W3 कौन सा ऑप्शन, अरे आज तो सारे ए आगरा वाले ही हैं, आज तो सारे ए आगरा वाले ही रहे बाबा, यस ए। अरे ये मेन 2000 में आया था, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पे बहुत लोग गलती करने वाले हैं, सो मेनी स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कमिट द मिस्टेक ओवर हियर। यहां तो बहुत लोग मिस्टेक करने वाले हैं। अब आ गया आपका दिमाग वाले क्वेश्चन, अब आ गया आपके दिमाग वाले क्वेश्चन। कब का क्वेश्चन है, 2002 मेन का क्वेश्चन है। एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCA, फाइन एज shown in the figure। if the net heat supplied to the gas in the cycle is 5 kilojoule, the net heat supplied to the gas is 5 joule। ये एरो थोड़ा ठीक कर लो, ये ऐसा आएगा ना। The work done by the gas in the process C2A is, फटाफट से करो, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, व्हाट विल बी द आंसर। फंस गए रे बाबा, फंस गए रे बाबा, इसमें बहुत सारे लोग फंस गए रे बाबा। सो मेनी पीपल आर गोइंग टू स्टक हेयर।
माई गॉड, सोचो सोचो सोचो, व्हाट कैन बी द कॉन्सेप्ट, थिंक केयरफुली व्हाट कैन बी द कॉन्सेप्ट ओवर हेयर। नहीं 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 नहीं, आप सोच नहीं पा रहे हैं। इसमें ना एक छोटा सा चेंज है, इसमें छोटा सा चेंज है इसमें ना एक छोटा सा चेंज है, एक छोटी सी ट्रिक है, अगर आप उसको समझ गए तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। बेटा यहां पर पता है इस क्वेश्चन में ट्रिक क्या है? यू नो व्हाट इज द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन? ऑन द वर्टिकल एक्सिस आई एम हैविंग वॉल्यूम। अरे जनरली व्हाट वी डू, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी आर कीपिंग वॉल्यूम एंड ऑन द वर्टिकल एक्सिस वी आर कीपिंग प्रेशर, लेकिन यहां पर क्वेश्चन में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ऑन द वर्टिकल एक्सिस आई एम कीपिंग वॉल्यूम, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आई एम कीपिंग प्रेशर, बस उतना ही चेंज है। अब आपको समझ में आ जाएगा। एनीवन इन द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द प्रोसेस ए टू बी? ये ए टू बी वाला प्रोसेस क्या है रे बाबा? ए टू बी वाला प्रोसेस क्या है रे बाबा? देखो यहां पर प्रेशर है ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, आई एम हैविंग प्रेशर, सो इट इज योर आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। एंड व्हाट इज योर बी टू सी? व्हाट इज योर बी टू सी? बी टू सी इज योर आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना, आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस। अरे यार देखो ना ध्यान से क्वेश्चन में, नेट हीट इंटरेक्शन इज गिवन ना, नेट हीट इंटरेक्शन इज गिवन 5 जूल। बेटा नेट हीट इंटरेक्शन इज 5 जूल, नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? नेटवर्क इंटरेक्शन। सो व्हाट इज अ नेटवर्क इंटरेक्शन बेटा? कैन आई से नेटवर्क इंटरेक्शन इज आल्सो 5 जूल। नाउ व्हाट विल बी नेटवर्क इंटरेक्शन? Work interaction for the process A to B plus work interaction for the process B to C plus work interaction for the process C to A. This total is 5 joule. Out of these three, I will be having the work interaction 0 for one of the process. Anyone in the class can tell me for which process the displacement work will be 0, for which process the work interaction will be 0. अरे B to C ना रे बाबा, B to C ना रे बाबा, it is your isochoric heat rejection process. तो यहां पे ये हो गया बेटा शून्य। ए टू बी निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब देखो एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम, ये वाला एरिया बेटा, ये वाला एरिया कितना होगा? ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? निकाल लो, ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? दिस इज द 10, दिस इज द 10 एंड दिस इज 2 - 1 इज 1 ना, 2 - 1 इज 1 ना, सो ये तो 10 आ गया, 10, सो 10 प्लस WCD इज इक्वल टू 5, सो WCD विल बी -5 जूल। बात समझ में आ गई बेटा? तो कौन सा आंसर है? ये वाला क्वेश्चन कैसा था रे बाबा? ये वाला क्वेश्चन करके मजा आ गया? आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में मजा आ गया सबको? आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। अरे ए आगरा है रे बाबा, वेरी गुड वेरी गुड। मैकेनिकल विक्रमजीत, शिवा, अन्वेष, विशी, विपुल, शिवा एक्सीलेंट है रे बाबा। अरे बोलो ये क्वेश्चन कैसा था रे बाबा? आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। इसमें तो मजा आ गया रे बाबा, बढ़िया 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 बढ़िया, ओ हो ब्यूटीफुल। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन पे चले, अगले क्वेश्चन पे चले बेटा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मेन 2004, मेन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आप तभी कर पाओगे, नहीं तो आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर इस क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट पता है आप तभी हिला पाओगे, नहीं तो हिला ही नहीं सकते। और जिन्होंने मेरी क्लास की है उनको 100% कॉन्सेप्ट पता है। एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स isothermally from a volume V1 to V2 and then compressed to original volume V1 adiabatically. Initial pressure is P1, final pressure is P3. The total work done, that means net means दोनों का sum is W. तो पूछा है आपसे कि कौन सा सही हो सकता है। What a beauty! ये हुई ना बात, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन बेटा। मतलब इसको आप लगाओगे तो दिल खुश हो जाएगा, इस क्वेश्चन को आप कर दोगे तो दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा यार कुछ सीखा है हमने। ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो मजा आ जाएगा। लेट मी से ऑन द वर्टिकल एक्सिस आई एम कीपिंग प्रेशर, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आई एम कीपिंग वॉल्यूम।
फटाफट से देखो क्या करना है, बताओ मुझे। लेट मी से दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम V1, दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम V2। चलो इतना तो समझ में आ गया मुझे। यहाँ पे वॉल्यूम V1 है, यहाँ वॉल्यूम V2 है ना। एंड लेट मी से इनिशियल प्रेशर इज P1 ना, तो इनिशियल प्रेशर मान लीजिए P1 है, दिस इज P1। चलो तो ये तो हो गई स्टेट 1। चलो फटाफट से बताओ बेटा क्या आंसर है, फटाफट से आंसर बताओ क्या रहा है आपका। व्हाट इज द आंसर यू पीपल आर गेटिंग? और बढ़िया बढ़िया, नेवल मैकेनिकल राघव छा गए गुरु। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वाह, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया, इतना जल्दी सही आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो क्या बोल रहा है, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2। ठीक है, आइसोथर्मली एक्सपेंड हुआ फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, बहुत बढ़िया। एक्सपेंशन मतलब इंक्रीज इन वॉल्यूम V1 टू V2, बहुत बढ़िया। मान लो यहां स्टेट 2 है, एंड देन कंप्रेस्ड टू ओरिजिनल वॉल्यूम V1 एडियाबेटिकली। ये जो एक्सपेंशन हुआ था ये तो हुआ था आइसोथर्मली, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लो। अब बोल रहा है कंप्रेशन इज एडियाबेटिकली। अब आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑन द सेम PV डायग्राम, isentropic process will be having the higher slope as compared to isothermal process. For the same, on the same PV diagram, isothermal process will be having the lesser slope as compared to isentropic. तो ये जो isentropic process होगा वो इसके नीचे से जाएगा या ऊपर से जाएगा? ऊपर से जाएगा। isentropic compression will be something like this बेटा। थोड़ा और फील देता आपको। आजा रे बाबा फील, आजा रे, ओ हो आ गया रे बाबा फील। हा, ये हुई ना बात बेटा। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट, 100%। डायग्राम देखकर आपको समझ में आ गया कौन सा प्रेशर ज्यादा है, P1 और P3। बेटा विच प्रेशर इज मोर, P1 और P3? कौन सा प्रेशर ज्यादा है बेटा, P1 ज्यादा है या P3 ज्यादा है? फटाफट से बताओ। ऊपर से जाएगा रे बाबा। क्यों जाएगा ऊपर से, क्यों जाएगा ऊपर से? बिकॉज दिस इज योर आइसेंट्रोपिक एडियाबेटिक, इंटरनली रिवर्सिबल एडियाबेटिक, सो हायर स्लोप, दिस विल बी हैविंग द हायर स्लोप, एंड ये वाला बछुआ विल बी हैविंग अ लेसर स्लोप। सो देयर इज नो डाउट, there is no doubt, 100% P3 is more than P1. If P3 is more than P1, B cannot be the answer, D cannot be the answer. Answer is either A आगरा और C चेन्नई। अब ये देखो बेटा, वो नेटवर्क W बोल रहा है, उसका मतलब क्या है? टोटल वर्क W बोल रहा है, उसका मतलब क्या है? W is basically sum of 1 to 2 expansion, 2 to 3 compression. 100%, 1 to 2 will be positive because I am having expansion. 2 to 3 will be negative because I am having compression. अब ये बताओ बेटा कौन सा वर्क इंटरेक्शन ज्यादा होगा? Which work interaction will be more in magnitude? Which work interaction will be more in magnitude? 1 to 2 और 2 to 3? कौन सा वर्क इंटरेक्शन ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड में, 1 to 2 वाला या 2? अरे ऑन PV डायग्राम, एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस विल बी रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इंटरेक्शन। 100%। अरे ये देखो रे बाबा, ये देखो रे बाबा, 2 to 3 के नीचे वाला एरिया प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस इज दिस। 1 to 2 के नीचे वाला एरिया प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। ओ माय गॉड, ओह माय गॉड, 100% द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इंटरेक्शन फॉर द प्रोसेस 2 to 3 इज मोर, कंप्रेशन वाले के लिए ज्यादा है और कंप्रेशन वाला है नेगेटिव। तो ये तो अब सबको चमक गया रे बाबा, सबको समझ में आ गया। W इज व्हाट? नेगेटिव, 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 100%। तो यार आंसर आ गया सी चेन्नई। A1 क्वेश्चन था कि नहीं? A1 क्वेश्चन था कि नहीं? जल्दी से बता दो बेटा, मजा आ गया? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। अरे बोलो रे बाबा, बोलो रे बाबा, बोलो रे, आर यू क्लियर टिल हियर? क्या ही तो बात है, एक्सीलेंट। चलो नेक्स्ट, ओ माय गॉड, मेन 2013, क्या ही तो क्वेश्चन, आपको मजा आ जाएगा। अब ना यहां से ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की लाइन लग गई है, अब यहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की लाइन लग गई है, आप अब मजा लेने वाले हो बेटा।
फुल मजा आने वाला है। जो लोग रिवाइज करके आए फुल मजा करने वाले रे बाबा। चलो कीप एंजॉइंग, कीप एंजॉइंग, कीप एंजॉइंग रे बाबा। द सोन पीवी डायग्राम, बेटा ये पीवी डायग्राम है। ऑन द वर्टिकल एक्सिस आई एम हैविंग प्रेशर, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस आई एम हैविंग वॉल्यूम। द सोन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट द थर्मोडायनामिक साइकिल ऑफ एन इंजन। बहुत बढ़िया। ऑपरेटिंग विद एन आइडियल मोनो एटॉमिक गैस। आइडियल गैस इज गिवन, मोनोटॉमिक गैस। ये चंपो फॉर मोनोटॉमिक गैस व्हाट इज गामा? किसी को याद है मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा कितना होता है रे बाबा? मैंने बताया था। एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी व्हाट इज द गामा फॉर मोनोटॉमिक गैस? 5/3 1.67 1.67। Are you able to recollect? Are you able to recollect? Are you able to recollect? Yes, yes, yes. The amount of heat extracted from the source in a single cycle is, फटाफट से बताओ बेटा। जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से बताओ। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या पूछा है? The amount of heat extracted from the source in a single cycle is, सोर्स से कितना हीट एक्सट्रैक्ट हो रहा होगा वो कैसे निकालोगे? अरे जब सोर्स से हीट निकली बाहर यानी कि सिस्टम को हीट सप्लाई हुई ना, सिस्टम को हीट सप्लाई हुई ना, तो वो बेसिकली क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द हीट सप्लाइड, व्हाट इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम, व्हाट इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। अब आपको ये पहचानना है कि इसमें से हीट सप्लाइड वाले प्रोसेस कौन कौन से हैं। अरे क्या देखो ना रे बाबा, देखो ना रे बाबा, ये देखो, ये देखो, ये इंजन है ना, एक इंजन है। ध्यान से देखना, मैं आपको समझाता हूं बेटा। आई एम हैविंग वन इंजन। इन दिस इंजन वी आर हैविंग 4 प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस। तो क्या पूछ रहा है? यहां पे कोई सोर्स है, यहां पर कोई सोर्स है, सोर्स ने कितना हीट रिजेक्ट किया ये पूछ रहा है। सोर्स से कितना हीट एक्सट्रैक्ट हुआ, द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स इन अ सिंगल साइकिल इज, दैट मींस यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द हीट सप्लाइड प्रोसेसेस। कितना टोटल हीट सप्लाइड हुआ, किसको? सिस्टम को, साइकिल को। Now, anyone in the class can tell me what is the process A to B? फटाफट से टाइप करेंगे रे पापा चैट बॉक्स में। What is the process A to B? फटाफट से टाइप करेंगे रे पापा। टाइप इन चैट बॉक्स, what is the process? What is the process A to B? फटाफट से टाइप करो। आइसोकोरिक से काम नहीं चलेगा बेटा। आइसोकोरिक के आगे बोलो, आइसोकोरिक के आगे बोलो, आइसोकोरिक के आगे बोलो। आइसोकोरिक हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, आइसोकोरिक हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन। 100% आइसोकोरिक हीट एडिशन, यस 100% आइसोकोरिक हीट एडिशन, यस। दिस इज द हीट सप्लाइड प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस B2C? एनी इंटेलिजेंट, अरे क्यों बोल रहा हूं मैं? व्हाई आई एम सेइंग दिस इज आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस? व्हाई आई एम सेइंग दिस इज आइसोकोरिक हीट एडिशन प्रोसेस बेटा? बिकॉज वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द प्रेशर। अरे ये तो मैंने चंपू बार बार बोला था। I have told you number of times. I have told you number of times. If I am having isocoric process during the heat supply, during the heat addition, pressure will increase. That is the reason why I am saying this is isocoric heat addition process. Anyone in the class can tell me what is BC? What is the process BC? Process BC is isobaric heat addition process ना, QS2 बेटा यही तो है। ये आपका हीट रिजेक्शन प्रोसेस है। दिस इज योर आइसोकोरिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस, दिस इज योर आइसोबारिक हीट रिजेक्शन प्रोसेस। बात समझ में आ गई? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर टिल हियर। सो बेसिकली आपको क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड QS1 plus QS2। Now for isocoric process, अब देखो ये बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन जिन्होंने मेरे से थर्मो पढ़ा है वो इसको हलवा बना देंगे रे बाबा इस क्वेश्चन का। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे से थर्मो पढ़ा है। आई हैव टोल्ड यू, मैंने कई बार बताया था बेटा, हाउ टू राइट हीट इंटरेक्शन इन PV टर्म्स फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोबारिक प्रोसेस। याद आ रहा है? फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस मैंने क्या बताया था? V इन ब्रैकेट P2 माइनस P1 बाई गामा माइनस 1। याद आ गया होगा, याद आ गया होगा, याद आ गया होगा। एंड फॉर आइसोबारिक प्रोसेस व्हाट वाज द फार्मूला ऑफ हीट इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम?
P, gamma P V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय गामा, बस वही है। ध्यान से देखना बेटा, QS1 isochloric heat supplied process. What is the constant volume? What is the constant volume during the process 1 to 2? What is the constant volume during the process A to B? V naught. P2 minus P1, final pressure minus initial pressure. P naught, 2 P naught minus P naught, right? Divided by gamma minus 1. Gamma is how much? 5 by 3. 5 by 3 minus 1 plus QS2. What is QS2? Heat supplied during the process BC. Constant gamma times, देखो दूसरे इंक से लिख रहा हूं, gamma times constant pressure is how much? 2 P naught. Final volume 2 V naught minus initial volume V naught divided by 5 by 3 minus 1. बेटा बस इतना ही सॉल्व करना है आपको। अब देख लो यार, ये तो हो गया P naught V naught, P naught V naught हो गया ना, 5 by 3 minus 1, that means 5 minus 3 by 3. So basically this is, इसको दूसरी इंक से लिखता हूं, बेसिकली दिस इज व्हाट, 2 by 3, दिस इज 2 by 3. अब यहां देखना बेटा क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, 5 to the 10, 10 by 3 P naught V naught, यही आ रहा है। बताओ कौन सा आंसर मैच हो रहा है? इज देयर एनी आंसर विच इज मैचिंग? इज देयर एनी आंसर विच इज मैचिंग? जल्दी से बताओ। लिखूं क्या नेक्स्ट पेज पे? लिख देता हूं, Q is equal to, which answer is matching? P naught V naught, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 P naught V naught by 2 ना, प्लस यहां क्या होगा, यहां कुछ और भी स्वाहा हो रहा है, देखो ये स्वाहा हो गया, ये स्वाहा हो गया, करेक्ट है। तो यहां तो 5 P naught V naught बचा, यहां तो 5 P naught V naught बचा, so 5 to the 10 plus 3 13, so Q is equal to how much? 13 P naught V naught by 2. Oh my God, what a beautiful question. कोई ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा? Is there any option which is matching? Yes, answer is option B. कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? How many of you are? अरे बी बॉम्बे है रे बाबा, ये वाला क्वेश्चन बताओ, मस्त था। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। फटाफट से बताओ कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन बढ़िया लगा? टेल मी बेटा, हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन? हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन? बढ़िया, अरे क्लियर है रे बाबा, बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? कम ऑन एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड दिस। यस, ब्यूटीफुल, ये हुई ना बात, ये जबरदस्त है रे बाबा, ब्यूटीफुल। शैल वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओ माय गॉड, मेन 2014, अरे मजा, ब्यूटीफुल। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा, 1 mole ऑफ डाइएटॉमिक। बेटा व्हाट इज गामा फॉर डाइएटॉमिक? फटाफट से बताना, व्हाट इज गामा फॉर डाइएटॉमिक? फटाफट से बता दो। गामा इज 1.4 ना, डाइएटॉमिक है तो गामा इज 1.4। अरे चंपू 1/4 मैंने क्या बताया था? 7/5 ना, बेसिकली 7/5। ठीक है। Undergoes a cyclic process ABC. ठीक है, there is a cyclic process ABC as shown in the figure. The process BC is adiabatic. This process BC is adiabatic process. The temperatures at A, B and C are 400, 800 and 600 Kelvin. यहां पर टेम्परेचर 400 Kelvin है, यहां पर 800 Kelvin है, यहां पर 600 Kelvin है। Choose the correct statements. The change in internal energy in the holes, चंपू रे बाबा, फॉर अ साइकिल, व्हाट इज, ये तो गुना है।
ऑप्शन ए तो गुना है रे बाबा। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द होल साइक्लिक प्रोसेस इज 250 आर। चंपू ये नहीं चलेगा रे बाबा, ये नहीं चलेगा रे बाबा। ये इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। द चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल इज हाउ मच। इलीगल है रे बाबा, इलीगल है रे बाबा। ये तो यही खत्म कर दो, ये तो यही खत्म हो गया रे बाबा, शून्य होना चाहिए था। चलो 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 आगे चलो, आगे चलो। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस सी ए इज 700 आर बार। सी ए सी ए सी ए कितना दिया है? 700 आर बार। बेटा ईमानदारी से एक चीज बताना, ईमानदारी से एक चीज बताना, during the process CA what is happening to the temperature? During the process CA what is happening to the temperature? Can I say temperature decreasing from 600 Kelvin to 400 Kelvin? क्या आपको दिखाई दे रहा है? CA process में temperature 600 Kelvin से घटकर 400 Kelvin हो गया। and if the temperature is decreasing what will happen to the internal energy? internal energy का क्या होगा रे बाबा? internal energy will decrease because I am having the ideal gas, and if internal energy will decrease, internal energy change will be negative or positive? ये पॉजिटिव भी गुना है रे बाबा, ये पॉजिटिव भी गुना है रे बाबा, ये पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। इफ द टेंपरेचर डिक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी चेंज हैज टू बी नेगेटिव। चलो 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 नेक्स्ट। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए बी इज -350 आर बार। कहां है ए बी? ये है ए बी। अरे 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 द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द प्रोसेस ए बी इज चंपू टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग रे बाबा। चंपो टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग रे बाबा। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इंटरनल एनर्जी चेंज हैज टू बी पॉजिटिव। ओह माय गॉड, अरे ये तो बिना सॉल्व किए ही हो गया, ये तो बिना सॉल्व किए ही हो गया। नथिंग टू सॉल्व। अरे इसमें तो कुछ सॉल्व ही नहीं करना है। आंसर इज डी डेली। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक कैसे करेंगे सर? बिल्कुल बताता हूं बेटा, देखो डेल्टा यू बार विल बी इक्वल टू व्हाट? एन सी वी बार डेल्टा टी, है ना? डेल्टा यू बार एन सी वी बार आर बार अपॉन गामा -1 डेल्टा टी। सो डेल्टा यू बार n is 1, r bar is r bar only, gamma -1 0.4, delta t change in temperature during the process BC 600 minus 800, so minus 200। ये बेटा 0.4 है, 200 by 0.4 will be 500, so minus 500 r bar। ये आ गया आंसर, ये आ गया आंसर। आ रहा है समझ में? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बन रहे हैं क्वेश्चन, बन रहे हैं क्वेश्चन। देयर इज नो नीड ऑफ ये बात समझ में आ रही है? ऐसे क्वेश्चन आते थे जिन सर मेरा जेई नहीं निकला सर। अरे चंपू ये क्वेश्चन था, बताया था तू किसी ने, बताया था तुझे किसी ने? फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इंटरनल एनर्जी चेंज इज 0, तो क्यों नहीं यूज किया? If the temperature decreases, internal energy decreases, delta U will be negative. If the temperature increases, internal energy increases, delta U will be positive। बस उतना ही तो करना है, खत्म है रे बाबा क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ गया पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा। If you are able to understand, make the complete chat box red। लाल कर देंगे रे बाबा। Come on everyone, अभी एडवांस के क्वेश्चन करवाने वाला हूं। सर आपने तो एडवांस के करवाए नहीं। चंपू एडवांस के करवाऊंगा, सारे के सारे सामने सामने करवाऊंगा, देखता जाना। माइनस साइन कैसे हुआ बेटा? देखो 600 माइनस, ये माइनस साइन यहां से आ रहा है रे बाबा। फाइनल टेम्परेचर ड्यूरिंग द प्रोसेस बीसी, मैंने बीसी के लिए निकाला है। आई एम फाइंडिंग फॉर बीसी। 600 इज द फाइनल टेम्परेचर, 800 केल्विन था इनिशियल टेम्परेचर। 600 माइनस 800 विल बी -200 केल्विन। ये हुई ना बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। अरे आ गए रे बाबा एडवांस के क्वेश्चन, आ गए आ गए आ गए आ गए एडवांस के क्वेश्चन आ गए। चलो करते हैं, आ गए रे बाबा एडवांस के क्वेश्चन आ गए। चलो एमएसक्यू है, एमएसक्यू है, जेई एडवांस्ड 2018 एमएसक्यू है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएसक्यू? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन।
What is the meaning of multiple select question? You can have more than one correct answers. चलो, 1 mole of a monoatomic is given. Gamma is 1.67, 5/3. Ideal gas undergoes a cyclic process as shown in the figure. ये एक बेटा साइक्लिक प्रोसेस है, बहुत बढ़िया. Where capital V is the volume, कैपिटल V क्या है? वॉल्यूम है, बहुत बढ़िया. कैपिटल T इज द टेम्परेचर. अरे हमको तो पता ही नहीं था, ठीक है दे दिया, अच्छी बात है. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो इज आर ट्रू? ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना. वर्टिकल एक्सिस इज टेम्परेचर एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज वॉल्यूम एक्सिस. बहुत बढ़िया. प्रोसेस 1 इज आइसोकोरिक प्रोसेस. बेटा मुझे ईमानदारी से बता देना, ईमानदारी से बताना, हाउ द आइसोकोरिक प्रोसेस विल लुक लाइक ऑन टीवी डायग्राम. कितनी बार बनवाया था, कितनी बार बनवाया था. हाउ द आइसोकोरिक प्रोसेस विल लुक लाइक ऑन टीवी डायग्राम. फटाफट से बता दो चैट बॉक्स में, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो बेटा. कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स, कैन यू टेल मी इन चैट बॉक्स हाउ द आइसोकोरिक प्रोसेस विल लुक लाइक ऑन टीवी डायग्राम, ऑन द टेम्परेचर वॉल्यूम डायग्राम. हाउ द आइसोकोरिक प्रोसेस. अरे वर्टिकल लाइन आएगी ना, आई विल बी गेटिंग द वर्टिकल लाइन, आई विल बी गेटिंग द वर्टिकल लाइन ना. पहला तो यहीं स्वाहा हो गया. ये तो कर्व है, ये कर्व है, तो ये आइसोकोरिक कहां से होगा? खत्म. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज रॉन्ग. लेट अस गो टू द स्टेटमेंट नंबर 2. क्या है? बी. In process 2, gas absorbs heat. In process 2, gas absorbs heat. That means it is your heat supplied process. That means it is your heat supplied process. जरा मुझे बताओ second process. Anyone can tell me what is the second process? ईमानदार से बताना. I am having TV diagram, मैंने बार बार बनवाया था. मुझे ये बताना ये प्रोसेस क्या है. कैन आई से ड्यूरिंग द प्रोसेस 2 टेम्परेचर इज कांस्टेंट बेटा. कैन आई से हियर द टेम्परेचर इज कांस्टेंट 100%. अरे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन टीवी डायग्राम, इफ आई एम हैविंग द हॉरिजॉन्टल लाइन 100% आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट. व्हाट इज हैपनिंग टू द वॉल्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस 2? ये वॉल्यूम क्या क्या हो रहा है रे बाबा? व्हाट इज हैपनिंग टू द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग. एंड इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, कैन आई से आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस? Can I say isothermal expansion process, isothermal heat addition process? Can I say this is your heat addition process? Isothermal heat addition process. 100% 2 is isothermal heat addition process. तो वो भी तो यही बोल रहा है, क्वेश्चन में यही तो दिया है. In process 2 gas absorbs heat, that means heat is getting supplied to the gas. This is correct. ये सही है, ये स्टेटमेंट सही है. चलो let us come to the statement number 4. Gas releases heat. What is the meaning of gas releases heat? Heat is getting rejected by the gas. बेटा anyone in the class, what is the process 4? ये तो कोई अंधा भी बता देगा, ये तो कोई अंधा भी बता देगा. 100% isothermal, there is no doubt, there is no doubt. 100% isothermal. अब बस मुझे इतना बता देना, आइसोथर्मल प्रोसेस में वॉल्यूम क्या क्या हो रहा है. व्हेन आई एम हैविंग द प्रोसेस 4, व्हाट इज हैपनिंग टू द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. And if volume is decreasing, compression. And if I am having isothermal compression, that means isothermal heat rejection. यहां पर क्या हो रहा है बेटा? Heat rejection हो रहा है. And if I am having the heat rejection, this is also correct. In process 4, gas releases heat. यहां तक भी हो गया, यहां तक भी हो गया. ये एडवांस का क्वेश्चन है रे बाबा, ये एडवांस का एमएसक्यू क्वेश्चन है रे बाबा, चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. अगर आपको मेरी क्लास पता है, ये चंपू क्वेश्चन है रे बाबा. इफ यू हैव लिसन्ड माय क्लासेस प्रॉपरली, ड्यूरिंग आइसोकोरिक हीट एडिशन व्हाट हैपेंस, ड्यूरिंग आइसोबारिक हीट एडिशन व्हाट हैपेंस, ड्यूरिंग आइसोथर्मल हीट एडिशन व्हाट हैपेंस, आई एम सेइंग यू मस्ट बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. लेट अस कम टू द फोर्थ पार्ट. प्रोसेस 1 and 3 आर नॉट आइसोबारिक. बेटा आपको मैंने बताया था on VT diagram how the isobaric process will look like. अरे inclined line passing through origin ना, अरे आपको बताया था मैंने. ऑन VT डायग्राम, आप V चाहे वहां लो, यहां लो, कहीं भी लो, इट हैज टू बी इंक्लाइंड लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. याद आ रहा है? ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा होना चाहिए ना. यस ऑफ कोर्स दे आर नॉट आइसोबारिक. दिस इज आल्सो करेक्ट.
तो कितने लोगों को समझ में आया? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर बेटा? आंसर ऑफ दिस MSQ इज B, C एंड D. क्लियर है? क्लियर है? आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर. फटाफट से बता दो बेटा. आई होप ईच एंड एवरीवन इज क्लियर. फटाफट से कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स में अगर यहां तक क्लियर है और ये आपको समझ में आ गया. पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा. अगर आपको ये समझ में आ गया जेईई एडवांस 2018 का क्वेश्चन, पूरी चैट बॉक्स लाल कर दो रे बाबा. बन रहा है कॉन्फिडेंस, बन रहा है कॉन्फिडेंस, आ रहा है मजा, आ रहा है मजा. बन रहे हैं क्वेश्चन मेन एडवांस के. मैं बता रहा हूं बेटा, अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, ये एडवांस वगैरह फोड़ दोगे रे बाबा, फोड़ दोगे रे बाबा. सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए. एडवांस फोड़ोगे, गेट फोड़ोगे. अभी तो एडवांस छोड़ दो, नहीं कर सकते. गेट फोड़ोगे, कॉन्सेप्ट रखना. ये एडवांस का क्वेश्चन था. एक और करवाता हूं, ये भी एडवांस 2018 का क्वेश्चन है. चलो पढ़ते हैं जरा एक बार क्या बोला है. पढ़ते हैं एक बार क्या बोला है. 1 mole of a monoatomic ideal gas undergoes 4 thermodynamic processes as shown schematically on the PV diagram below. अच्छा, 4 प्रोसेस दिए हैं. एक ये है फर्स्ट प्रोसेस, ये है सेकंड प्रोसेस, दिस इज थर्ड प्रोसेस एंड दिस इज फोर्थ प्रोसेस. फाइन. Among these 4 processes, one is isobaric, one is isochoric, one is isothermal and one is adiabatic. बेटा पीवी डायग्राम दिया. ऑन द वर्टिकल एक्सिस दे आर कीपिंग प्रेशर, ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस दे आर कीपिंग वॉल्यूम. इन चारों में से एक आइसोबारिक है, एक आइसोकोरिक है, एक आइसोथर्मल है, एक एडियाबैटिक है. अभी बता दो पहले, यही बता दो पहले कौन सा वाला आइसोबारिक है. कैन यू टाइप इन चैट बॉक्स बेटा विच वन इज आइसोबारिक? नहीं मिलेगा बेटा मानस. यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स, यू विल नॉट गेट एनी पार्ट मार्क्स फॉर MSQ. देयर इज नो नेगेटिव, देयर इज नो पार्ट मार्किंग. ये बताओ इसमें से आइसोबारिक कौन सा वाला है? फटाफट से बताओ बेटा विच वन इज आइसोबारिक. 1 2 3 4, 1 2 3 4. अरे वेरी गुड, मजा आ गया बेटा, मजा आ गया. आई एम एंजॉइंग, आई एम एंजॉइंग. यस, सेकंड वन इज आइसोबारिक. विच वन इज आइसोकोरिक? लिखा है ना 1 इज आइसोकोरिक. कौन सा वाला आइसोकोरिक है? फटाफट से बताओ विच वन इज आइसोकोरिक. विच वन इज आइसोकोरिक? फटाफट से बताओ कौन सा वाला आइसोकोरिक है रे बाबा. 2 वाला तो गया आइसोबारिक, 2 वाला तो आइसोबारिक बुक हो गया रे बाबा. चंपी तो बुक हो गई रे बाबा. डंपी पंपी बची हैं, बताओ जल्दी कौन सा है आइसोकोरिक? आइसोकोरिक, आइसोकोरिक. अरे वर्टिकल लाइन ना. यस 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 यस, ये है आइसोकोरिक, ये है आइसोकोरिक. 1 इज आइसोथर्मल, 1 इज एडियाबैटिक. अब ये अगर आपने बता दिया तो मजा आ जाएगा. आई विल बी हैप्पी कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट इस चीज को बता पा रहे हैं. आई विल बी मोर देन हैप्पी बेटा. मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर आपने ये बता दिया, क्योंकि मैंने इस पे ना पूरा फोकस करके एक पूरा लेक्चर इस पे बताता कि स्लोप कैसे दिखते हैं. अब ये 1 और 4 में से आउट ऑफ दिस 1 and 4 विच वन इज आइसोथर्मल एंड विच वन इज एडियाबैटिक? जिसका भी स्लोप ज्यादा होगा वो एडियाबैटिक है, जिसका भी स्लोप कम होगा वो आइसोथर्मल है. किसका स्लोप ज्यादा है रे बाबा? यहां से देख लो ना, किसका स्लोप ज्यादा है, किसका स्लोप. अब बस मैंने हिंट दे दिया बेटा, बहुत ज्यादा. अब जल्दी से बता दो, कम ऑन एवरीवन, किसका स्लोप ज्यादा है? यस, एक्सीलेंट. ये हो गया एडियाबैटिक. दिस इज एडियाबैटिक. लेट मी से पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. आइडियल गैस दिए ना, हाँ बहुत बढ़िया. एंड दिस इज योर परफेक्ट गैस. मोनोएटॉमिक जनरली परफेक्ट गैस होती है ना, मोनो आइडियल गैस विल बी परफेक्ट गैस. एंड दिस इज योर आइसोथर्मल, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट. बट मेरा मन तो करा आपसे और चीजें पूछ लूं, और चीजें पूछ लूं क्या? चलो आज जब पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल बिंदास पढ़ते हैं, एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ते हैं. ये बताओ, आपने बोला ये आइसोबारिक है, आगे बोलो. आइसोबारिक हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, आइसोबारिक हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन, आइसोबारिक हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन. फटाफट से बता दो बेटा. दिस इज आइसोबारिक हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन. आइसोबारिक हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन 100% हीट एडिशन है. व्हाई आर यू सेइंग हीट एडिशन? आपके दिमाग में हीट एडिशन कैसे है? अरे वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग ना, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम V0 to 3V0. हीट एडिशन. चलो ये बताओ बेटा, यू आर सेइंग दिस इज आइसोकोरिक ना, आपने बोला ये आइसोकोरिक है. अब ये बताओ आइसोकोरिक हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन,
This third process is isocoric process. I agree with you. Can you tell me this is isocoric heat addition or heat rejection? ये वाला जो प्रोसेस है ये isocoric heat addition है या heat rejection है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो. What is happening to pressure? Pressure is decreasing. Pressure is decreasing. अगर pressure decrease होता है isocoric process में तो that means what? I am having isocoric heat rejection. ये आपका isocoric heat rejection है. चलो अब यहां पे आता हूं, यहां पे आता हूं. इसके बारे में बोलो क्या हो रहा है. आइसोथर्मल है ना, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. इन आइसोथर्मल प्रोसेस इफ द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग प्रेशर इज इंक्रीजिंग. व्हाट कैन यू से? isothermal heat addition or isothermal heat rejection? Whenever I am having isothermal heat addition, volume increases, pressure decreases. This is your isothermal heat rejection and this is your adiabatic compression ना. एरो ऐसा है ना, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, कंप्रेशन. चलो आते हैं क्वेश्चन पर. मैच करना है in process 1, in process 2, in process 3, in process 4. Work done by the gas is 0, temperature of the gas remains unchanged, no heat is exchanged between the gas and the surrounding. Work done by the gas is 6 P naught V naught. अरे ये तो चंपो क्वेश्चन है रे बाबा. प्रोसेस 1 है एडियाबैटिक. एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन कितना होगा? शून्य. शून्य है रे बाबा हीट इंटरेक्शन. सो फर्स्ट इज मैचिंग विथ 3. बहुत बढ़िया. टाइप करो चैट बॉक्स में जल्दी से क्या आंसर आ रहा है. व्हाट इज द प्रोसेस 2? आइसोबारिक एक्सपेंशन. यहां पर आइसोबारिक हीट एडिशन, यहां क्यू भी पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम भी पॉजिटिव होगा. ठीक है, ठीक है. इसमें वर्क इंटरेक्शन निकाल लें. एरिया अंडर द कर्व प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस. दिस एरिया विल बी गिविंग द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोबारिक हीट एडिशन प्रोसेस. तो ये एरिया कितना होगा? देखो ये तो है 3 V naught minus V naught, 2 V naught. This is how much? 3 P naught. So 3 P naught into 2 V naught, 6 P naught V naught. But this is matching with this. In the process 3, where is the process 3? This is the process. अरे ये तो during isocoric process, what will be the displacement work? 0 स्वाहा. 4, where is the process 4? Isothermal heat rejection or compression. Isothermal means temperature will be constant. तो कौन सा मैच हो रहा है रे बाबा? सी चेन्नई. आ गया कॉन्फिडेंस, बिल्ड हो रहा है कॉन्फिडेंस, बन रहा है क्वेश्चन. समझ में आ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं. शून्य. बेटा सारे कॉन्सेप्ट जो बताए थे एप्लीकेबल हैं, सारे क्वेश्चन जो बताए थे लाइन से एप्लीकेबल हैं आप लोगों के लिए. आ रहा है मजा? आर यू एंजॉइंग द क्लास? आर यू एंजॉइंग द क्लास? मजा आ रहा है? अरे चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, ये एडवांस के चंपू क्वेश्चन है रे बाबा, चंपू क्वेश्चन है. ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल. कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन एवरीवन. टाइपिंग चैट बॉक्स. आ रहा है मजा? आर यू एंजॉइंग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. यस यस यस. अरे ये तो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है रे बाबा. ऐसे और सेशन लाई जाए आप लोग के लिए, आप लोग के लिए और इस टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएं. फ्लूइड मैकेनिक्स के करवाऊं, इस टाइप के क्वेश्चन हीट ट्रांसफर के करवाऊं. बनेगा कॉन्फिडेंस. क्रैक कर पाएंगे हम लोग गेट का एग्जाम, क्रैक कर पाएंगे हम लोग गेट का एग्जाम. यस वी विल क्रैक, वी विल क्रैक. नेगी सोल्जर्स विल क्रैक गेट एग्जाम. ये गेट 2022 का धुआं धुआं कर देंगे रे बाबा, धुआं धुआं कर देंगे रे बाबा. चलो 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 आगे चलते हैं. नेक्स्ट जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2018 का क्वेश्चन है. क्या बोल रहा है भैया क्वेश्चन? पढ़ लो. NAT है. 1 mole of a monoatomic ideal gas undergoes an adiabatic expansion in which its volume becomes 8 times its initial value. ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है बेटा. मोनोएटॉमिक दे दिया, गामा इज 1.67 और यू कैन से 5/3. नंबर ऑफ मोल्स 1 दिए हुए हैं. एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज टेकिंग प्लेस एंड द V2 इज 8 टाइम्स ऑफ V1. इफ द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 100 Kelvin, T1 इज गिवन 100 Kelvin एंड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R bar इज 8 जूल. अब देखो उसने बोला, चंपो अब लड़ाई नहीं करेगा रे बाबा. सर मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा. सर नेगी सर ने मुझे बताया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R बार इज 8.314 जूल पर मोल. सर मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा सर, आपने R बार गलत दिया. अब वहां लड़ाई नहीं करनी है रे बाबा. चंपू जब बोल रहा है एग्जामिनर R बार
जेई का बच्चा है ना, 8.314 की मल्टीप्लाई कब तक करेगा रे बाबा? तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 8 दे दिया, समझो रे बाबा एग्जामिनर की फीलिंग। R bar is given 8 joule per mole per Kelvin, then the decrease in its internal energy in joule is. How to find the change in internal energy? कितने लोगों को याद आ रहा है? How many of you are able to recollect how to find the change in internal energy? ये डेल्टा U कैसे निकालेंगे रे बाबा? डेल्टा U कैसे निकालेंगे रे बाबा? N डेल्टा U is equal to what? N CV बार डेल्टा T। N तो पता है 1 है, CV बार भी निकल जाएगा। CV बार कैसे निकालोगे? R बार डिवाइडेड बाय गामा। ये डेल्टा T कैसे निकलेगा? T1 इज नोन, T1 पता है, T2 नहीं पता बेटा। हाउ टू फाइंड दिस T2? ये T2 कैसे निकालोगे? T1 तो दिया है, T2 नहीं दिया। T2 बेटा मैंने बताया था, इफ आई एम हैविंग अ परफेक्ट गैस अंडरगोइंग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, हाउ टू फाइंड T2? यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस। देखो बेटा ध्यान से, TV पावर गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो 100%। T2 V2 पावर गामा -1 इज इक्वल टू T1 V1 पावर गामा माइनस, देयर इज नो डाउट यहां से T2 निकल जाएगा। कैन आई से T2 विल बी व्हाट? V1 बाय V2 पावर गामा -1 इंटू T1। सो कैन आई से T2 इज इक्वल टू V1 बाय V2 रे बाबा, V1 बाय V2 1/8 गामा -1, गामा इज हाउ मच? गामा इज 1.67 ना, 1.67। What is the meaning of 1.67? 0 point। यार यहां बताओ, हेल्प करो यार, आप लोग ऐसा ना करो। ये कितना होगा? गामा इज 5/3, 5/3 2/3 आ जाएगा, है ना? तो 1/8 पावर 1/3 विल बी 1/2, 1/2 स्क्वायर विल बी 1/4। यार ये T2 तो आपका 25 केल्विन आ रहा है। इफ T2 is 25 Kelvin, what is the delta U? 1/8 by 5/3, 5/3 minus 1, 2/3, T2 25 minus T1 100। अब बताओ बेटा कितना आ रहा है? दिस इज 4 है ना, दिस विल बी -75, -75 इंटू 4 विल बी 300, 300 इंटू 3 विल बी 900। डेल्टा U इज कमिंग -900 जूल। आंसर क्या रखने वाले हो बेटा? व्हाट आर यू गोइंग टू सब्सटीट्यूट? यहां पर क्या आंसर करने वाले हो? फटाफट से बताएंगे चैट बॉक्स में, आपका आंसर क्या होने वाला है रे बाबा? व्हाट विल बी योर आंसर? आपका आंसर क्या होने वाला है? व्हाट विल बी योर आंसर इन एग्जाम? -900। कैन आई से योर आंसर विल बी -900? फटाफट से बता दो बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं आपका आंसर -900 होने वाला है एग्जाम में? जल्दी से बताओ। नो नो, यू आर नॉट गोइंग टू पुट -900। बेटा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? द डिक्रीज, ही इज आस्किंग डिक्रीज। ऑलरेडी डिक्रीज वर्ड यूज हो गया, ऑलरेडी डिक्रीज वर्ड यूज हो गया। आंसर इज 900। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? बन गया ये वाला क्वेश्चन? बन गया ये वाला क्वेश्चन? फटाफट से आंसर करो। बढ़िया क्वेश्चन था, सबने बना लिया। आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू सॉल्व। फटाफट से टाइप कर देंगे बाबा चैट बॉक्स में, आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एबल टू सॉल्व। बन गया ना? चले आगे चला जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस 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 यस। चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट, क्या ही तो क्वेश्चन है रे बाबा। इसके बाद मेरे पास कुछ और क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। ये बेटा रीसेंट है तो मैं करवा दे रहा हूं, ये 2020 में आया था, बस लास्ट ईयर ही आया था, तो इसको करवा देता हूं, है ना। हाँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोला था तो माइनस साइन लगा देते आप, है ना। ठीक है, कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस। हीलियम गैस इज मोनोएटॉमिक और डायएटॉमिक? चंपा, हीलियम गैस इज मोनोएटॉमिक और मोनोएटॉमिक है रे बाबा। एंड इफ इट इज मोनोएटॉमिक, गामा विल बी हाउ मच? 1.67। कंसीडर 1 मोल ऑफ हीलियम गैस enclosed in a container at initial pressure P1 and volume V1. It expands isothermally to volume 4V1. Isothermal expansion हुआ, PV is equal to constant, volume increase from V1 to 4V1. Fine. After this, the gas expands adiabatically and its volume becomes 32V1. अच्छा, ठीक है, 4V1 से increase होकर 32V1 बन गया. The work done by the gas during the isothermal and adiabatic expansion process are W iso and W adia. Okay. If the ratio of W iso by W adia is F ln 2, then F is. बेटा मुझे एक चीज बताना, ध्यान से बताना, इसका पीवी डायग्राम बना सकते हो क्या? एक बार पीवी डायग्राम बना दो, मजा आ जाएगा। ट्राई टू ड्रॉ द पीवी डायग्राम ऑफ दिस। एक बार पीवी डायग्राम बनाना, तो वैसे तो पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप लोग एक बार पीवी डायग्राम बना लो। आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ द पीवी डायग्राम। एक बार इसका पीवी डायग्राम बनाओ, मजा आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन का पीवी डायग्राम बनाओ, आपको मजा आ जाएगा। देखना बेटा ध्यान से। हियर आई एम कीपिंग प्रेशर एक्सिस, हियर आई एम कीपिंग वॉल्यूम एक्सिस। हियर आई एम हैविंग, लेट अस सपोज वॉल्यूम V1। लेट मी से हियर आई एम हैविंग, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अरे चंपा, हो यार, यही समझ में नहीं आता, इसको सेलेक्ट कैसे करते हैं। नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेट अस सपोज हियर आई एम हैविंग 32V1। चुपके से इसको सिलेक्ट करने की कोशिश करूं, नहीं हो रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो क्यों बोल रहा हूं मैं आपको डायग्राम बनाने के लिए, ध्यान से देखना। ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम 1 to 2 एंड द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग फ्रॉम V1 to 4V1। अब ध्यान से सुनना बेटा, अब क्या हो रहा है, आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है, तो स्लोप ज्यादा रखना है। अब आपका स्लोप ज्यादा होना चाहिए। यस, नाउ दिस इज योर V3 वेयर आई एम हैविंग 32V1। ये डायग्राम समझ में आ गया क्या सबको? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड द डायग्राम बेटा? ये डायग्राम समझ में आ गया क्या सबको? क्या आप इस चीज को नोट कर पा रहे हो? मैंने क्यों बनाया ये डायग्राम आपके लिए? हियर यू शुड हैव मोर स्लोप एंड हियर यू शुड हैव लेस स्लोप ना। ठीक है, ठीक है यार। W आइसोथर्मल तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कभी भी आपके लिए। W आइसोथर्मल तो निकल गया। W आइसोथर्मल इज व्हाट? P1 V1 ln V2 by V1 ना। So W isothermal is very easy. W isothermal is how much? P1 V1 ln V2 by V1. V2 is 4V1. So 4V1 by V1. V1 will be getting swaha. And if V1 is getting swaha, what are you getting? ln 4 will be 2 ln 2 ना। अरे ln 4 को देखो, ln 4 को ln 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 2 ln 2। So W iso is 2 P1 V1 ln 2। Let me say this is equation number A। अब ये एडियाबैटिक वाले के लिए कैसे निकालेंगे बेटा? हाउ टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वर्क फॉर दिस एडियाबैटिक एक्सपेंशन? इसके लिए कैसे निकालोगे? इसके लिए कैसे निकालोगे बेटा? इसके लिए कैसे निकालोगे? फटाफट से बताओ,
फटाफट से बोलो रे बाबा, टाइप इन चैट बॉक्स क्विकली। देखो W adiabatic will be what? It will be P2V2 minus P3V3 upon gamma minus 1, right? Adiabatic expansion. अब देखो बेटा, V2 already I know, V2 is 4V1. V2 देखो ध्यान से, अरे चंपा look at here रे बाबा, pressure is P1, volume is V1, ये मुझे पता है। ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ। इफ आई एम हैविंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन हियर, वॉल्यूम इज 4V1। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बेटा? ये चीज आपको समझ में आ रही है? इफ आई एम हैविंग आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम मस्ट बी कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ द वॉल्यूम इज बिकमिंग 4 टाइम्स ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन, व्हाट विल हैपन टू प्रेशर? अगर वॉल्यूम 4 गुना हो रही है, देन व्हाट विल हैपन टू प्रेशर? प्रेशर विल बिकम 1/4 ना, सो प्रेशर विल बी P1/4। तो मुझे P2 पता चल गया, V2 पता चल गया। ऑलरेडी आई नो V3, हाउ मच इज V3 बेटा? 32V1। अब ये P3 कैसे निकालेंगे रे बाबा? हाउ टू फाइंड P3? एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास कैन टेल मी हाउ टू फाइंड दिस P3? बेटा इसका भी एक जुगाड़ है ना, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो PV पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, then 100% P2 V2 power gamma is equal to what? P3 V3 power gamma. What I want to find? I want to find P3. So P3 will be what? V2 by V3 whole power gamma into P2. Beta V2 is how much? V2 is a 4V1. What is V3? V3 is a 32V1 power gamma. Gamma is how much? Monoatomic है ना? 5/3. P2 is how much? P1/4, राइट? तो यहां से चंपा, कैन यू, अरे चंपो रे बाबा, चंपा, कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P3 यू आर गेटिंग फ्रॉम हियर? अरे V वॉल्यूम V1 इज गेटिंग स्वाहा, 4/32 इज 8, ये हो जाएगा 1/8 पावर 5/3, दैट मीन्स 2 पावर 5 इज 32। ये आ रहा है 1/32 इंटू P1/4। बेटा कितने लोगों को समझ में आ रहा है? P3 इज इक्वल टू हाउ मच? P1/128। बेटा P3 निकल गया, अब तो काम खत्म है। वंस यू आर एबल टू कैलकुलेट P3, कैन यू फाइंड W एडियाबैटिक? व्हाट विल बी W एडियाबैटिक बेटा? P2 इज हाउ मच? P1/4। V2 is a 4V1, अरे P1V1 ही है ना बेसिकली, माइनस P3V3, P1/128। V3 is how much बेटा? 32 V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, 5/3 माइनस 1। समथिंग इज गेटिंग स्वाहा, यहां पे 4 आ गया। P1V1 माइनस P1V1/4, 3P1V1/4 क्या आ रहा है बेटा? एक बार देख लो फटाफट से, मुझे आंसर बताओ इसका। आई वॉन्ट ईच एंड एवरीवन टू गिव मी द आंसर। तो बेटा यहां पर बन रहा है 3P1V1/4 एंड यहां पर बन रहा है 2/3, सो ये 9/8 आ गया, 9/8 P1V1 है ना? दिस इज इक्वेशन नंबर बी, दिस वॉज इक्वेशन नंबर ए। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन द क्वेश्चन ही इज आस्किंग W आइसो डिवाइडेड बाय W एडियाबैटिक, 2P1V1 ln 2 डिवाइडेड बाय हाउ मच बेटा? 9/8 ना, 9/8 P1V1। P1V1 is स्वाहा। So what I'm getting रे बाबा? 16/9 ln 2। 16/9 कितना आ रहा है बेटा? What is the value of 16/9? फटाफट से बताना, जल्दी से बताओ। What is the value of 16/9? What is the value of 16/9? फटाफट से कंफर्म करो बेटा। What is the value of 16/9? कंफर्म करो क्विकली। Come on everyone, come on everyone। कितना आएगा रे बाबा?
या 2 से कम आएगा 1.77, ओके 1.78 आ जाएगा ना ln 2। तो बेटा f की वैल्यू कितनी आ रही है 1.78 है ना। सो आंसर इज 1.78। बढ़िया क्वेश्चन था ना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, है ना। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बेटा। ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर। अरे बोलो रे बाबा, आर यू क्लियर टिल हियर? व्हाट अ ब्यूटी, एक्सेलेंट है रे बाबा, नेगी सोल्जर सैल्यूट है रे बाबा। अब ये बताओ, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हम लोगों ने टिल नाउ, व्हाटएवर द क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड, आपको कहीं पर कोई भी परेशानी हुई क्या? Is there any question which you are not able to understand? Is there any question which you are not able to solve? सारे के सारे क्वेश्चन जेई मेन के थे, सारे क्वेश्चन जेई एडवांस के थे। कोई भी एक भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आया? आर यू क्लियर टिल हियर? बिल्कुल बेटा सूर्यवंशी, डेफिनेटली वी विल कीप ऑन रॉकिंग, आई विल कीप ऑन ब्रिंगिंग। आज बहुत लोग हिल गए रे बाबा, आज बहुत लोग हिल गए रे बाबा कि ये क्वेश्चन नहीं बनते थे हमसे। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी वर नॉट एबल टू सॉल्व। कर सकते हो नेगी सोल्जर्स, यू कैन डू इट, वी विल डू इट, वी विल डू इट टुगेदर, वी विल डू इट टुगेदर। यस 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 यस। चलो अब एक बेहतरीन व्हाट अ ब्यूटी। चलो 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 ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, सब करवा दूंगा मैं, डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। चलो 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 चलो, व्हाट अ ब्यूटी। n moles of an ideal gas undergoes a process A and B as shown in the figure. n moles of an ideal gas undergoes a process A and B as shown in the figure. The maximum temperature of the gas during the process will be. He is asking the maximum temperature of the gas during the process. अब बेटा इसमें मैं बताऊं, let me tell you how are you going to solve this. Let me tell you how are you going to solve this. बेटा यहां से क्या आप इक्वेशन बना सकते हैं P and V के टर्म्स में? Can you find the equation in terms of P and V from here? Can you find the equation in terms of P and V here? यहां पर क्या आप प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में इक्वेशन बना सकते हैं? आपको P1 V1 पता है, आपको P2 V2 पता है, स्ट्रेट लाइन गिवन है। अरे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती थी ना, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x1 इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यही होती थी ना। दिस वाज द इक्वेशन, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय व्हाट, x2 माइनस x1। फटाफट से बनाओ, फटाफट से बनाओ, मुझे इक्वेशन बताओ। व्हाट इज द इक्वेशन वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ P and V? कैन आई से P माइनस P1? P1 इज हाउ मच, 2P नॉट डिवाइडेड बाय V माइनस V1, V माइनस V नॉट इज इक्वल टू, क्या लिखा है, P माइनस Y माइनस Y1, P माइनस 2P नॉट डिवाइडेड बाय Y2 माइनस Y1, P नॉट माइनस 2P नॉट इज इक्वल टू x माइनस x1, V माइनस x1 इज हाउ मच, V नॉट डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 2V नॉट माइनस V नॉट। ये इक्वेशन समझ में आई बेटा? ये मैंने कैसे लिखी? आई होप ईच एंड एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये समझ में आई बेटा, ये कैसे लिखा है? ये समझ में आ रही है बात, ये कैसे लिखा है? अरे P माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इज इक्वल टू V माइनस V1 डिवाइडेड बाय V2 माइनस V1। कैन आई से आई एम गेटिंग P माइनस 2P नॉट इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज माइनस P नॉट इंटू V माइनस V नॉट डिवाइडेड बाय V नॉट। यही है बेटा, यही है। What I'm getting, P minus 2P naught is equal to what? Minus P naught by V naught into V minus minus is a plus, V naught is 1 plus P naught. एक बार ये कंफर्म करो बेटा, यही आ रहा है क्या सबका? एक बार मुझे ये कंफर्म करो।
एवरीवन इज गेटिंग द सेम थिंग? यही आ रहा है। इस माइनस 2p0 को इधर लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस। सो कैन आई से p इज इक्वल टू 3p0 माइनस p0 बाय v0 इंटू v। ये इक्वेशन आ गई बेटा। लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अब देखो बेटा ध्यान से, मैं बताता हूं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। pv is equal to what? mrt. So t is equal to what? pv by mr. Already I have calculated p in terms of v ना, मैंने already p को v के terms में निकाला हुआ है। So what I am getting? 1 by mr p 3p0 minus what? p0 by v0 इंटू v। यार ये p0 तो बाहर निकाल लो। p0 बाय mr 3 माइनस v बाय v0 इंटू v। सो t इज इक्वल टू वॉट? p0 बाय mr 3v माइनस v स्क्वायर बाय v0 ना। ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर बी। अब देखो, कैन यू ऑब्जर्व ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम हैविंग टेम्परेचर, ऑन द राइट हैंड साइड आई एम हैविंग ओनली वन वेरिएबल विच इज वॉल्यूम। अब ये बताओ आपको समझ में आ रहा है क्या करने वाले हम लोग? नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर वी गोइंग टू डू? कैन यू टेल मी व्हाट आर वी गोइंग टू डू? क्या करने वाले हैं? अरे उसने मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा है ना, आपको समझ में आ रहा है? मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा है। मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे dt बाई dv को क्या रख देंगे? dt बाई dv को क्या रख देंगे? dt बाई dv मस्ट बी हाउ मच? शून्य। सो कैन आई से d बाई dv ऑफ t p0 बाई mr 3v minus v square upon v0 is equal to 0. So what I'm getting? p0 by mr 3 minus 2v by v0 is equal to शून्य। यहां से v निकालोगे तो v कितना आ जाएगा बेटा? 3 by 2 ना, 3v0 by 2। ये आ गया, ये आ गया, कंडीशन आ गई। अब इस कंडीशन को कहां रख देंगे? Let us substitute over here and we'll be getting the answer. अच्छा आर बार में पूछ रहा है, चंपू आर बार में पूछ रहा है, तो यहां एक काम करो, एम आर की जगह क्या रख दो? आर बार में पूछ रहा है ना, एन आर बार रख दो। एन आर बार इन प्लेस ऑफ एम आर कीप एन बार, एन आर बार, एन आर बार, एन आर बार। अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे। इन प्लेस ऑफ v यू राइट 3v0 by 2 एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। बेटा जल्दी से बताओ आंसर क्या रहा है। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है गेट में। सो t मैक्सिमम, आई एम नॉट डूइंग द डबल डिफरेंशिएशन, वो नेगेटिव ही आएगा। t मैक्सिमम इज इक्वल टू हाउ मच? कंडीशन आई गॉट p0 डिवाइडेड बाय n r बार 3v। in place of v what I am going to write? 3v0 by 2 minus v square by v0, 3v0 by 2 square by v0. So t max is equal to what? p0 by n r bar, 3 3 जा 9 है ना, 9v0 by 2 माइनस 3 3 जा 9, 9 by 4, 9v0 स्क्वायर बाय v0। सो v0 आ जाएगा ना, 9v0 by 4। तो क्या आ रहा है बेटा? t max 9 by 2 minus 9 by 4 will be 9 by 4 only. So 9 by 4 PR। क्या ही तो जबरदस्त क्वेश्चन है रे बाबा, व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। समझ में आया बेटा ये वाला क्वेश्चन? देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं।
व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है रे बाबा, बहुत बढ़िया विसी, छा गए गुरु, बहुत बढ़िया बेटा। जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया सैल्यूट है। दोज हु आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन सैल्यूट है रे बाबा, दोज हु आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन सैल्यूट है रे बाबा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। देखो उसने पूछा था, यस, इन द क्वेश्चन ही आस्क्ड व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। उसने पूछा था व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। ये मैक्सिमम टेम्परेचर कैसे निकालेंगे रे बाबा? आपको एक इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी, वेयर आई एम हैविंग टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वेयर आई एम हैविंग द टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सिंगल वेरिएबल ऑन द राइट हैंड साइड। देखो बेटा ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है, PV इज इक्वल टू एन आर बार टी, सो T इज इक्वल टू व्हाट, PV बाय एन आर बार। अब यहां पर दो वेरिएबल्स हैं, नाउ हियर आई एम हैविंग टू वेरिएबल्स, प्रेशर एंड वॉल्यूम। सो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी सी चालाकी करी। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन I calculated pressure in terms of volume and then I substituted here whatever the pressure I have calculated in terms of volume, I have substituted here. Now I am having only volume as the variable. Now if the volume is the only variable, you do derivative. First time you do the derivative, you will be getting the some condition and you substitute condition here, you will be getting the answer. ये वाला आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? चलो आज के सारे क्वेश्चन बन गए, जल्दी से बताओ आज के सारे क्वेश्चन बन गए, मजा आया? बताओ मजा आया कि नहीं आया? आई होप यू हैव एंजॉयड। महेश मजा आया बेटा? इस क्वेश्चन में मजा आ गया? मजा आ गया इस क्वेश्चन में? बेटा एक और चीज, जो लोग मेरे से पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन, आज मिलने वाले हैं हम लोग 5:50 PM। टुडे वी विल मीट एट 5:50 PM एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन। तो सब लोग लाइव आ जाएंगे रे बाबा, सब लोग लाइव आ जाएंगे रे बाबा। बेटा दिस इज योर ज्ञान गंगा, ये है ज्ञान गंगा। वट एवर द फ्री क्लासेस आई हैव टेकन आइदर ऑन यूट्यूब और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस, एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन सिस्टमेटिक वे। हर चीज बहुत ही सिस्टमेटिक वे से है, चाहे वो थर्मोडायनामिक्स है, थर्मोडायनामिक 2.0 है, फ्लूइड मैकेनिक्स, हार्डली फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, और मे बी गेट एक्सी सेशंस और PYQs, एवरीथिंग इज अरेंज्ड सिस्टमेटिक वे। सर हाउ टू रीच दिस ज्ञान गंगा? तो ये बता देता हूं बेटा, देखो tinyurl.com/negi10 कोड, इसको आप टाइप करना अपने एड्रेस बार में, ये खुल जाएगी बेटा। मान लो किसी पर भी आप क्लिक करो, फ्लूइड मैकेनिक्स पर क्लिक करो, नेम ऑफ द चैप्टर, लेक्चर नंबरिंग, टॉपिक कवर्ड, लिंक ऑफ द क्लास, link of the notes, everything you'll be getting. But if you are liking the session, hit the like button रे बाबा, subscribe करो, share करो, comment करो रे बाबा। There are so many students who are asking me, sir, what is the difference between YouTube and Unacademy Plus? बेटा मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा डिफरेंस है मेरी पर्सनल कार्ड। एंड द मोमेंट यू आर जॉइनिंग Unacademy Plus using the referral code NEGI10, you will be getting my personal guidance of GATE All India Rank 1 2019-20 Engineering Sciences paper. I will make sure your dreams are coming true. आपको Unacademy Plus लेने के बाद केवल और केवल पढ़ाई करनी है, कब, कहां, किससे, कैसे पढ़ना है वो सब मैं बताने वाला हूं। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाली, you will not have any confusion. I will be your single point contact on Unacademy Plus. Classroom environment, competitive environment, serious teaching, serious learning. This is the batch which we have started recently, evolved for GATE 2022 batch L, Ascent for GATE 2023 batch L. अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, you can join this batch L using the referral code NEGI10। आ जाओ रे बाबा। Now my friends, yes, the moment you are joining Unacademy Plus using the referral code NEGI10, you will be getting the live classes. In case you are missing the live classes, you will be able to watch the recorded sessions. Okay, now you will be getting the daily practice problem, practice sheets. You will be getting the doubt solving groups. Yes, the moment you are using NEGI10, I will be adding you in all the doubt solving groups where me and my team members are present. You will be having the weekly quizzes. You will be getting the detailed solution of the weekly quizzes. Once your syllabus is over, your revision will be our responsibility. आपको revision के लिए भी क्लासेस मिलने वाली हैं. You will be getting the crash course, you will be getting the rank improvement batches. And those who are my Negi soldiers from the southern part of the country, Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Karnataka, Odisha, Kerala, need not to worry. Your Negi sir is standing in the southern part of the country only, and you will be having the batches in English language also.
Okay, now if you are financially well settled, then you can join Unacademy Iconic using the same referral code Negitan. सेम रेफरल कोड नेगिटन लगाकर आप अनअकैडमी आइकॉनिक ज्वाइन कर सकते हैं. व्हाटएवर द फीचर्स आर देयर ऑन अनअकैडमी प्लस, वो सब तो आपको मिलेंगे. उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, लाइक यू विल बी गेटिंग द पर्सनल कोच. दिस पर्सनल कोच इज गोइंग टू मेंटर यू 1-to-1 राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, राइट फ्रॉम द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी टिल द इंटरव्यू गाइडेंस. ओके, नाउ this personal coach will make sure you are getting the customized study planner, and of course you will be getting the personalized test analysis. Whatever the quizzes you are going to write, each and every quiz is going to be analyzed by this personal coach, and you will be getting the feedback how to improve in the future quizzes. Okay, so that you are ready for the D-Day. You will be getting the study booster set from Unacademy, how to increase the efficiency of learning, how to enhance the skills of writing exams. इसके अलावा आपको मिलने वाले हैं preparatory study material, theory books, problem books, सब मिलने वाली है. Let us suppose Negi soldiers are planning to join Unacademy Plus using the referral code Negitan. The moment they are using Negitan, they will be getting the maximum discount, and the subscription fee will be getting reduced. For 12 months, it will be reduced to 27,225 rupees. For 18 months, it will reduce to 34,650 rupees, and for 24 months, it will reduce to 39,600 rupees. And the best part is, if my Negi soldiers want, they can pay in no cost EMI also. Sir, what is the meaning of no cost EMI? Let us suppose they are planning to join for 24 months. 39,600 rupees divided by 24. So it will be literally 1650 rupees per month, or you can say 55 rupees per day. बस इतना ही आपको पे करना है और ज्यादा कुछ पे नहीं करना है. Are you getting what I'm saying? Sir, how can I pay in no cost EMI? Beta, if you are having the credit card of any bank, if you are having the debit card of HDFC Bank, if you are having the Bajaj Finserv card, you can pay in no cost EMI. Fine. सर मेरे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं है. एक काम कर लो बेटा, बस गो टू Negitan टेलीग्राम चैनल, टेक माई व्हाट्सएप नंबर और मुझे व्हाट्सएप कर दो. आई विल बी गाइडिंग यू फर्दर कि इन तीनों के ना होने पर भी आपको कैसे सब्सक्रिप्शन मिल सकता है नो कॉस्ट EMI में. अदरवाइज देयर इज वन मोर थिंग, यू कैन मैसेज मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप. But we are conducting Unacademy Combat in the upcoming Sunday, 6th of June. Okay, आप लिख सकते हैं using the invite code Negitan. Why to use Negitan? Because Negitan is not just a code; it's an emotion which is connecting me to you people. Negi sir to Negi soldier. Jham classes to Jham learning. You'll be getting the personal guidance of GATE All India Rank 1 2019-20 sciences paper. Top mechanical educator on Unacademy Plus, ME plus XE मतलब Negitan. This is my team to whom I'm leading on this YouTube channel. Thank you so much. Love you all. Take care.